A very warm welcome to our esteemed dignitaries on the dais, Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, His Excellency Mr. Jean-Marc Gilliatt, Minister of European Union and Foreign Action Catalonia, Mr. Inbasekar Sundarmurthy, CG of India in Barcelona, Mrs. Christiana Serradella, Director International Trade Union, ACCIO. I extend warm welcome to the senior officials from the Government of Madhya Pradesh, Mr. Sanjay Dubey, Additional Chief Secretary, Department of Science and Technology, Mr. Shiv Shekhar Shukla, Principal Secretary, Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh and Department of Culture, Mr. Raghavendra Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion and MSME. I extend warm welcome to Mr. Kilian Garcia, Director, Fomento del National, and I extend very warm welcome to the respected members of the business community, Indian diaspora, from India and Spain, and friends of MP. Dear friends, as India and Spain move towards deeper cooperation in trade, technology, tourism, culture, sports, and of course innovation, Madhya Pradesh stands ready to serve as a gateway to India's rising economic potential. With its strategic central location, investor-friendly policies, abundant natural resources, and a strong commitment to sustainability and ease of doing business, the state offers an ideal landscape for the international partnership and investment. Today we are going to see sector-specific insights from industry and MSME to tourism and emerging technologies directly from our senior leadership team. We invite you to explore areas of collaboration, discuss how your organizations can grow with state of Madhya Pradesh, the place of infinite opportunities. We look forward for further strong ties, not only trade, but other areas of culture and tourism. Once again, I welcome you all from the heart of incredible India. Thank you, gracias. Thank you, sir, for your warm and gracious words of welcome, which have beautifully set the tone for this important gathering. It is now my privilege to invite His Excellency, Mr. Jean-Marc Gilliatt, Minister of European Union and Foreign Action of Catalonia, to kindly address this gathering. Thank you, sir. Molt bon dia a tothom, benvinguts, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por su presencia y por su invitación. Your Excellency, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, representatives of the state government, distinguished guests, institutional leaders, friends. Good morning. It's a true honor on behalf of the government of Catalonia to take part in this important forum dedicated to exploring investment opportunities and deepening collaboration between both Catalonia and the state of Madhya Pradesh in India. Let me begin by extending a warm welcome to the delegation and expressing our gratitude for your presence and commitment to building bridges of cooperation. Catalonia is a nation with a long-standing commitment to openness, to dialogue, and international engagement. Our foreign action pushes shared prosperity, and in this spirit, we very much welcome spaces such as today's, which allow us to foster new alliances across continents. Our ambition goes beyond economic success. For the Catalan government, we work with sustainability, inclusiveness, and global responsibility in mind. We believe that progress must share, and in this regard, the partnership with Madhya Pradesh presents an exciting and mutually beneficial opportunity. India is a strategic global actor, and Madhya Pradesh is the most promising probably
early and fastest developing state. It stands out for its dynamic development, its strategic location, and a clear commitment to sustainable growth and innovation. Specifically, we recognize the vision and leadership से उन्होंने ये शुरुआत की होगी। इस माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके इस गौरवशाली अतीत को नमस्ते करता हूं। भूमध्य सागर के शहर समीप बसा हुआ यह शहर प्राचीन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। टूरिज्म, तकनीक, रचनात्मक उद्योगों की ये नगरी बन चुका है। और बार्सिलोना के संबंध में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पहले सारे वक्ताओं को बोलते बोलते समय की सीमा भी बताई गई थी, तो मैं अपने से भी पालन करना चाहूंगा कि मैं भी आपके इस समय सीमा का पालन करते हुए अपनी बात कहूं। बातें सारी आ गई है, चाहे खेल हो, कला हो, पर्यटन हो, प्रौद्योगिकी हो। बार्सिलोना ने विकास और नवाचार का एक नया मार्ग दिखाया है। जिस प्रकार से बार्सिलोना ने वैश्विक नवाचार और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है, मध्य प्रदेश भी स्थिर शासन, सरल प्रक्रियाओं और तेज निर्णय की क्षमताओं के आधार पर दुनिया का विश्वास जीतने में ठोस कदम उठा रहा है। मैं ये आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं राज्य सरकार के मुखिया के नाते से। हमारे लिए भारत के संदर्भ में तो सारी बातें आई चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था में भारत अपने स्थान पर है और कुछ समय बाद ये तीसरे स्थान तक भी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से पहुंचेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कार दुनिया देख रही है, एहसास कर रही है। उनकी प्रेरणा से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई औद्योगिक विकासों की नई दिशाएं प्रारंभ हुई है। दोनों देशों के स्पेन के संदर्भ में अगर कहूं तो भारत और स्पेन के दोनों के बीच लोकतंत्र, नवाचार, मानवता के साझा मूल्यों पर दोनों देश खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में भी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को हमने पार किया है। 230 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में सक्रिय है और 80 तो भारत से आकर स्पेन में सक्रिय है। C-295 एयरक्राफ्ट डील जैसे रक्षा समझौतों ने हमारी तकनीक, सहयोग और औद्योगिक विकास को नई गति दी है। डिफेंस सेक्टर में भी हमारी ऐतिहासिक साझेदारी हुई है, जिसमें कई सौ विमान या कई प्रकार की हमारी आपस की व्यापारिक संभावनाओं पे हमने अपनी ठोस गति बढ़ाई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहना चाहूंगा तो ऐसा लगा कि यहाँ जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की और स्पेन की हमारी यात्रा प्रारंभ करने के पहले जो कल्पनाशीलता थी, मुझे लगा कि वो सच्चे अर्थों में कई देशों में गया, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो स्पेन में आपके बीच मिलकर के आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता। एक एक चीज स्पेन ने अपने सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर में, इंडिटेक्स में जब मैं कल गया था तो काटन तो हमारा, और काटन के माध्यम से कपड़े की दुनिया में बेताज बादशाह बनने की जो क्षमता यहाँ हासिल हुई है, ऐसा लगा दो बिछड़े भाइयों की ताकत का एक बड़ा मुकाम हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का या टेक्सटाइल का भी है। ये मुकाम मुझे यहाँ आके अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का मौका मिला है। और उससे अच्छी बात जो एहसास होती है कि आमतौर पर व्यापार व्यवसाय करते करते व्यापार के साथ इथिक्स की बात पीछे छूट जाती है। जब धन कमाने जाते हैं तो धन कमाते कमाते उससे जुड़ी हुई मानवीय मूल्यों की जो भावना है, उस भावनाओं में हमारी कहीं न कहीं ज्यादती हो जाती है, कहीं अन्याय हो जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने हमारी कपास की उत्पादकता के आधार पर, जब मैं इंडिटेक्स में कपड़े की इंडस्ट्री के साथ गया, मेरे साथ कई हमारे अपने वहां से जुड़े हुए उस रोजगार के आधार पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, तो जिस प्रकार से वहां बात हुई वो हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करती। जब उनने कहा कि आप एनर्जी भी अगर उपयोग करते हैं, बिजली उपयोग करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी होना चाहिए। और जब हमने उनको बताया कि आपकी लिमिट क्या है, तो उनने कहा 35-40 तक उनने लिमिट ग्रीन एनर्जी से सब कुछ उत्पादन का है। हमने कहा ये 30-40
30-40 की छोड़ो, हमारे यहाँ 3 साल के अंदर हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए 32 लाख सोलर एनर्जी के पंप हम देने वाले हैं। हम उसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं जिस ढंग से आपकी कल्पना है। और केवल एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी कुल उत्पादकता बिजली की है, उस उत्पादकता में आधी से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हम अपने सोलर से, विंड से, पावर स्टोरेज से न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनने की तरफ हम ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब जैविक कपास की बात आती है, सभी प्रकार की फसल उत्पादन की बात आती है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश ने अपनी गति बढ़ाई है। और इसी के साथ साथ हमारी अपनी भावनाओं के बलबूते पे देखें, मैं आबादी का रेशो जोड़ रहा था कि बदलते दौर में भारत ने क्या प्रगति की है। हमको गर्व होता है सुनकर के कि इसी देश भारत ने, आप पूरे यूरोपियन सभी देशों की आबादी जोड़ लो तो लगभग 74 करोड़ की आबादी अपने यूरोपियन देशों की है, लेकिन भारत 80 करोड़ लोगों को अपने संसाधनों से निःशुल्क अपना भोजन कराने के सामर्थ्य रख रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिस आधार पर भारत अपनी गहराई बता रहा है। जितनी आबादी हमारी स्पेन की है, इतने लोगों को तो आवास देने का संकल्प माननीय मोदी जी के माध्यम से कि हाँ, निःशुल्क आवास हमारे लोगों को देने के लिए अपनी क्षमता होना चाहिए। उसमें से बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश की तरफ से भी हमने अपना कंट्रीब्यूशन मिलाते हुए खड़ा कर दिया है, जिसके आधार पर हमारी जो जीवन के मूलभूत अधिकारों के लिए मनुष्यता के साथ संबंध होना चाहिए, तो न केवल उनके खाने के, रहने के, उनकी अपनी बाकी पढ़ाई से लेकर के सभी व्यवस्था तक, लेकिन आपने उससे आगे बढ़ते हुए हमारे प्राकृतिक रूप से भी उन बातों का आग्रह किया है जो हजारों लाखों साल से भारतीय अपने उन प्राकृतिक संबंधों के बलबूते पर संस्कृति को लेकर के दुनिया में अलग से गौरव हासिल करते आए। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात में एक महत्व की बात यही है, जो जियो और जीने दो में विश्वास करती है। हमारे साथ ये साझा संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि मानव मूल्यों की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रोल अदा करेंगे। इस नाते से आइए, स्पेन अब उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ की संभावना हमने वैश्विक नक्शे पे आज के दौर में देखी है कि आज यूरोपियन देशों के लिए अगर सबसे सही राह पे चलने वाला एक साझेदार की बात करेंगे तो हमारा भारत उस दिशा में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, जिसकी वर्षों से इंतजार था। और भारत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उसी प्रकार से बढ़ रहा है, जब न केवल हमारे टूरिज्म में बल्कि नई टेक्निक में, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री, और खासकर आज जब मैं यहाँ सवेरे उस मार्केट में गया जहां हमने खास करके आपके यहाँ के सभी प्रकार के फल, फूल, सब्जी, उसके मार्केट के आधार पर जो रचना बनाई है, हमने तो वही बात भी की थी। और ये उसी प्रकार से जब हमारे अपने ये जो फूड सप्लाई चेन को संभालते हुए दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से स्पेन ने अपनी जगह बनाई है, तो डेटा सेंटर में भी कल हमने जो निर्णय किया और हमारी काम करने की गति भी आपको दिखाई देगी कि कल हमने डेटा सेंटर का, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से MOU कर लिया है। ये बदलते दौर में भारत के अपनी प्रगति का ये प्रमाण भी है। और कितना अच्छा लगा जब वो हमारे साझेदार ने हमारी भारतीय टाई को गौरवान्वित किया। हमारा सबका 56 इंच का सीना हो गया कि हाँ, आज के इस दौर में हमारे अपने उत्पाद को लेकर के एक आत्मीयता का रिश्ता भी बनाने की जरूरत है और बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत भी है। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर से लगा करके बायोटेक क्लस्टर और कई प्रकार के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। IT और डिजिटल इकोनॉमी की दृष्टि से बात आ चुकी है। फिल्म और बाकी चीजों पे भी हमने काम किया है। मैं अगले साल 2025 तो जो चल रहा हमारा उद्योग और रोजगार का वर्ष है, आने वाले 2026 के लिए भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग के लिए हमने ये वर्ष निश्चित किया है, जिसके माध्यम से स्पेन के साहित्यकार, कलाकार, विद्वानों को भारत में आमंत्रित करके हम आपस में इस खास करके स्पेन फिल्म कमीशन के साथ हमने एक MOU किया, जिसपे हम ठोस कदम उठाएंगे।
मैं खेलों के लिए भी कल लालिना और यहाँ के भी ऐसे कई सारे फुटबॉल के एसोसिएशन से भी बात कर रहा था और हमने कहा कि भविष्य में ओलंपिक में हमारे यहाँ कई प्रकार के अलग अलग क्लबों के साथ विभिन्न खेलों में भी एक दूसरे से साझा रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए बहुत थोड़ा समय है। मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा ज्यादा मत बोलो, थोड़ा बोलो और ठोस काम करो। इस भाव के नेत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. Thank you so much, sir, for your powerful and visionary address. We are deeply grateful for your presence today. The time has come to bring this prestigious event to a close. I invite Dr. Ilya Rajati, Managing Director of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, to kindly come forward and do the honors. Hola. His Excellencies, dignitaries, esteemed guests, and all the industry stakeholders, it's my honor and privilege to say a vote of thanks. First of all, our gratitude goes to our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, for his visionary leadership. Sir, your presence reaffirms Madhya Pradesh's commitment to foster global collaboration and instills confidence among the investors. And thank you so much, sir. And our gratitude again goes to Zwame Duke Gillett, Minister of European Union and Foreign Action of Catalonia, for honoring us with his presence. And equally our gratitude goes to Inbasekar Sundaramurthy sir. पाल में हुई थी, उसमें दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स सभी ने पार्टिसिपेशन किया था और करोड़ों रुपए के समझौते वहां पे सरकार के साथ और इन्वेस्टरों के साथ हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और सकारात्मक नीतियों ने मध्य प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद प्रदेश बना दिया है। यह सब संभव हो पाया है, उसके पीछे कारण है क्योंकि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से साकार किया है। I would like to conclude my speech with this, and I would request all of you to please stand up at your place and give a thunderous round of applause for मुख्यमंत्री जी। प्लीज आप लोग खड़े होकर एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां साथियों ऐसी बननी चाहिए कि बार्सिलोना की फिजा में मध्य प्रदेश की आवाज गुंजाई दे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। Thank you so much, sir, for that warm and thoughtful welcome. Your words truly set the tone for what promises to be an engaging and inspiring session ahead. It is now my honor to invite His Excellency Shri Inbasekar Sundaramurthy ji, Consul General of India to Barcelona, to deliver the keynote address. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब भारतवासियों और सब लोगों के लिए मेरा तरफ से on behalf of Consulate General of India, we would like to present, give our honors to Honorable CM Sir, Chief Minister of a very important state, Madhya Pradesh. I don't need to give explanation to you, but we are, sir, we are proud and honored to have you here. आप इधर आने बार्सिलोना में आपका you are welcome and आपका स्वागतम है। And CM, Honorable Chief Minister Sir, was there since yesterday afternoon. But हमारा जो कंसुलेट जनरल है, विदेश मंत्रालय का ब्रांच है, वी आर इन फुल स्विंग बिकॉज अभी आने के वक्त से वो एक ही वेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच है डेटा सेंटर एंड तुरंत 30 मिनट के बाद ही वाज टॉकिंग अबाउट कैन वी साइन एन एमओयू। सर 22 साल तक अभी मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, मैं अभी तक ऐसा दृश्य कैसे नहीं देखा कि एक नेता ने टेक ऑफ स्पीड में कर रहे हैं।
we are huffing and puffing, which is actually good. Meaning विदेश मंत्रालय full gear में है तो मतलब है केंद्रीय सरकार और स्टेट सरकार अच्छी तरह काम कर रहे हैं सर. सर इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. Now, I would also want to say that I was in the morning. It was that we had an investor summit, and I think so the Catalonian foreign minister he was really impressed with you, and apparently the feedback he was got that he is looking forward to a visit next year to India. Let it set the tone, sir. हम भी सोच रहे हैं कि भारत की प्रधानमंत्री और एक बार इधर आके अपनी दर्शन करें. अभी महाकाल की दर्शन आपका डेलीगेशन रूप में आ रहे हैं. सो वी आर कमिंग. सो सर वी आर जस्ट होपिंग नाउ द बेस्ट इज अबाउट टू कम. अभी इस समय में आपको ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पेन में 80,000 लोगों के ऊपर हैं. 80,000 बट आई थिंक द नंबर्स आर क्लोज टू 1 लाख. और उसमें कैटलोनिया है से यही पावर हाउस है स्पेन का. मैं ये उसमें गर्व है कि मैं इस प्रोविंस का कंसुल जनरल हूँ. पहले था मैं पापा न्यू में एम्बेसडर थे, बट इधर आई सी इधर में आके मैं देख चुका हूँ कितना पॉसिबिलिटीज है. इधर हमारा डायस्पोरा है, बहुत तेज है, वह ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है एंड इतना मेहनत नाम है, अच्छा नाम कमाना. इस साल में we had this flood, पिछले साल में we had this flood sir, and हमारा जो सिख कम्युनिटी थे वेलेंसिया में वो आके श्रमदान किया, पूरा न्यूज पेपर आया था. इतना गर्व की चीज है. A friend in need is a friend indeed. कष्ट समय में उसके साथ रहना, यही हमारा तरीका है सर. That's why I'm telling the Spanish people to add value to the community. ये हमारा हिंदुस्तान की डीएनए है. पेट की थाली को छेद करना हमारा डीएनए में नहीं है. वो we are proud to be Indians, and some people try to say that we are South Asians. No, we are Indians. I tell them, don't say South Asia is not a continent. South Asia is a subcontinent. I am an Indian and I am proud to be Indian, and call me as an Indian. And I will request you, sir, in front of you, to tell the Indian diaspora, please project the India in the best way. That Madrid में हमारा ambassador है, consultant बन के मैं इधर बैठा हूँ. I just represent India officially because I am विदेश मंत्रालय के representative. लेकिन आप ही cultural ambassador हैं. हाँ, we can project जो रहते हैं ना, जो what is there we can project, और उसको जो मसाला बनना है आपका ऊपर है. So आप ही you have to provide the content which you are ready to project. I kept a ready-made speech, but speech करेंगे तो बोर होते हैं. That's why I normally keep a speech. This is मेरा comfort paper है, but मैं बोलता हूँ मेरा दिन खोल के. So I want to say, and sir, अभी है community है. We have an ISKCON temple here. Every day, sir, we can see people from Panyar. They come and do this bhakti, and there is a growing value about the Indian importance here. हम आगे बढ़ा रहे. Sir, I am telling the Spanish, and Spanish accept that the best days are in front of us. कुछ colonial देश को पीछे चल गया. The best days are behind them. So we are one of the few countries. In fact, I wouldn't say we are one or two countries in the world. We can say the best days are ahead of us, and that is why I will also request Indians that we are entering the big league. And when we are entering the big league, we have to behave like a big league. So that is why I want to request you on this occasion that Indians, we are coming here, we should come here legally, and we should contribute more value to that, because हमारा brand value बनना consulate general का official काम है. But उस बड़ा what you call that पुण्य कर्म, that sacred duty में आपका role भी है. Only if you do the thing, we are able to project it. And please be assured, we will do our best to take care of our community. And इस समय में I want to tell you a very important thing, that starting from 1st of August, we will be establish a regular consulate which will be functioning from the Alliance Towers, which is Carrer de Tarragona. The floor of 16th and 17th, we are going to move into that. And after that, there will be an official inauguration. I will not tell who will be the VIP. Let's hope we will try to get the best. And we will going to have a successful inauguration. And consulate पूरा सर्विस आपको करेगा, और उसमें एक छोटा सा हॉल भी हमारे पास है कि हमेशा इकोनॉमिक एंड ट्रेड 40-50, इट्स नॉट अ बिग हॉल, बट टू डू ट्रेड प्रमोशन और अपनी कोई भी ट्रेड इवेंट्स है, इट should not be completely personal. We will be happy to do that completely free of cost.
देखिए भारत सरकार इसके लिए है, टैक्स पेयर मनी में वी आर गोइंग टू हेल्प द टैक्स पेयर टू प्रमोट इंडिया कैटालोनिया ट्रेड। इसलिए आइए हमारा साथ मिलजुल के वी कैन डू इट टुगेदर। इट इज अ टीम एफर्ट। देखिए हमारा कंसुलेट है 5-6 लोग हैं। इट्स organization is only as good as its leader. I will try to be a good leader for this team. Like how we have a very good leader here on the stage, which is driving the energy for the Madhya Pradesh. Well, I take inspiration from the leadership and I will do my best so that it takes two to tango. Sir, and your presence here, sir, once again has been very energizing. The community were asking, there's a lot of competition to come here, so they are taking that interest. Sir, I am sure, sir, your presence, and after that, we will keep following up. जो आप promises किया है. So promises will be done, and it is for the consulate to follow up and deliver further. So we will be here to do the follow-up service, sir. And you can count upon the Consulate General of India, like we helped Madhya Pradesh, which is a proud say. As I say, in old times, the longitude of India passes through Ujjain. They say that is why all the major temples of India, if you see the longitude, it passes by. Ujjain was considered to be the center of the ancient Indian universe. I am sure Ujjain is also going to reclaim his heritage. Where time itself, where we have the Lord of Time, Mahakal, what else can go wrong in the state? So I think with that promise and hope, and I'm looking at, and we already have a person, who already became a Pravasi Bharatiya Samman Awardee, Robert Masi Nahar sir. Hamara community log hain, they are also entered into Rajniti and started performing well. I don't know whether Senator Nahar is here, but I want to say, and he has got this Pravasi Bharatiya Samman Awardee. And I will also say, he was from the political side. I will also request you to other fields to contribute, enter politics, contribute and be a bridge for India and Catalonia. As I say, I truly mean when I say you are the cultural ambassadors. And I want your support so that हम इकट्ठे बैठ के इंडिया को आगे बढ़ाएं. In the 21st century, if you are seeing the geopolitical challenges, कितना लोगों हमारे खिलाफ जलूस में हैं. If you understand the person who has been friend to you so far, अभी आपके खिलाफ जलूस में हैं, इसका मतलब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो. Please understand. So जलूस आएगा, but the thing is how to navigate it. Now you are seeing our Videsh Mantri, how he is, and our political leadership, how it is doing it, and our Videsh Mantralaya is following the directions, and we are doing our best. You are seeing in the geopolitical tangle between Russia and Ukraine, how India is able to get the best deal. Indian government, Bharat Sarkar and Videsh Mantralaya will always be there for you. Sir, with this positive note, we look forward to your speech, which is the best, the climax is yet to come. I am happy that I wanted to play a small role in that. Sir, once again, thanks for presenting this opportunity. And once again, the community, I know we have made you wait for a long time. Kindly bear with me. So, because the best is yet to come here. And I once again thank all of you. Dhanyavad. Thank you so much, sir, for your insightful address. Moving on, we will now screen an audio-visual film that beautifully captures the infinite possibilities that Madhya Pradesh has to offer across sectors like textiles, pharmaceuticals, food processing and tourism. Can we have the AV, please? If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you,
If you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory, business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by world heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities aligned in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. We have finally arrived at the most awaited moment of today's program. Under the visionary leadership of Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, the state is witnessing remarkable growth and transformation across sectors. We are truly honored to have him with us, and today's gathering is eager to hear his inspiring vision. अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आएं और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बरसुनला में भारत के काउंसलर जनरल माननीय सुंदर मूर्ति जी इतना बढ़िया भाषण देते हुए मुझे भी बड़ा मजा आ गया। उत्साह से लबरेज, आनंद से परिपूर्ण। इस अवसर पर मंच पर मौजूद हमारे पीएस इंडस्ट्री श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर सुदाम खाड़े जी, इलैया राजा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी और रोहित भाई, तुमने भी गजब किया। कहां से लाया भाषण लिखवा के पता नहीं चला, लेकिन उत्साह से परिपूर्ण। और ये सच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सबका भी उत्साह दे करके मुझे ऐसा लगा कि मैं उज्जैन में ही घूम रहा हूं। आपको सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे यहाँ कहावत है, हंडी के चावल सबको नहीं देखना पड़ते, एक आध दबा लो तो मालूम पड़ जाता कि ये पक गए। तो ये जब आपके बीच के हमारे
भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और ने का लिखा हुआ भाषण क्या पढ़ना, मैं अपने भावों को वैसे उद्गार से व्यक्त कर दूं। तो ये नहीं पढ़ रहे थे, ये आपको मैं पढ़ रहा था, इनके बीच के संबंध पढ़ रहा था और आपकी प्रगति पढ़ रहा था, ये जो आनंद आ रहा था, जिसका रोम रोम पुलकित होकर के अपने आप से आवाज दे रहा है। ये बदलते दौर का भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई सौ किलोमीटर दूर और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए होंगे अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है, लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त है, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग, हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए, होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, जिसके रहने मात्र से किसी भी मोहल्ले, किसी गली, किसी नगर, किसी शहर, किसी भी देश में अगर एक आध भारतीय भी पहुंचता है तो वो पूरा क्षेत्र वाला आनंद में आ जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आध आ जाए ऐसे तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर के बर्तन में कोई ने एक आध बूंद नींबू निचोड़ दिया तो सबको फाड़ देता दूध को। ऐसे लोग भी है आज के इस दौर में। लेकिन हम भारतीय लोगों की जो पहचान है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था, वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं उनसे ही मालूम पड़ता है। इसके हमारे ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। मैं तालमेल मिला रहा था कि मैं आकर आपसे कोई बात कहूं, उसके पहले दिन भर अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय की, राज्य की प्रगति की। वैसे तो ये मेरी 7 दिन की यात्रा, इसका आज 6ठा दिन चल रहा है, लेकिन ये आलोक जी लाहौर को भूल गया। मैं माफ करना आलोक जी, ये जरा आनंद ऐसा आया कि इधर से उधर तक एक ही लग रहा है। जोरदार आनंद करें आलोक जी के नाम कर ऊपर तालियां बजाएं। इंडियन कम्युनिटी लीडर बार्सिलोना के हैं आलोक जी, मस्ताने हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है, और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोग और वो लोग आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। जो लोग भी सुधारे, परलोक भी सुधारे, उसी का नाम आलोक है। जो हमारे अपने जीवन में कई सारे लोग कई समझ पाते, नहीं समझ पाते, पता नहीं, लेकिन जितना समझ पाते हैं वो हमारी संस्कृति में रोम रोम से निकल करके आता है। जैसे हमारे बीच में कोई देश की पहचान बताए एक आध लाइन में, तो कैसे बताएगा
तो वो भांगड़ा का बहुत अच्छा गीत की फिल्मी लाइन समझ में आएगी। ये देश है वीर जवानों का, देखो आप क्या इसके अपने आप में एहसास होता है। ये रोने गाने वालों का देश नहीं है, ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं कल आज ऐसे कई जगह अपने देश के विशेषताओं के साथ बात करने के लिए चर्चा कर रहा था, अपनी विशेषता बताने की। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है। कितने हैं? और सबकी आबादी जोड़ लो तो आबादी 74 करोड़ के आसपास बताइए, शायद मैं सही हूं, है ना। और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता, अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दूर में दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक 4थे नंबर पे है। और ये माननीय मोदी जी की चुनाव का ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच अपने नागरिकों के साथ जुड़ करके, जो अपने 8 करोड़ के आसपास नागरिकों, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के लिए भी अपन बात करें तो ये आपके विरासत से विकास के लिए स्पेन का बड़ा गौरवशाली अतीत बताते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात भी है कि कल्चर से भी प्रेम करते हैं स्पेन के लोग, और अपनी वर्तमान के विकास के नवाचार के लिए नई प्रकार की व्यवस्था के साथ जीते हुए। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो विरासत से विकास की ओर तो हमारे बहुत सारे एक जैसे विचार, एक जैसी अपनी राजनीतिक यात्रा के वो सब इथिक्स भी जुड़ते हैं। जब हमको विरासत से विकास की बात करते हैं तो इसीलिए तो भारत भी कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिल्मी एक फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। और इसीलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो अपने मध्य प्रदेश की विकास की बात भी हमारे बीच में से आपने कुछ संक्षिप्त अलग अलग इसकी फिल्मों की रचनाओं के आधार पे भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी आया हूं, और ये भी बांटने आया हूं कि हाँ, हम हमारे क्षमता से, योग्यता से, आपने गुजारे प्रत्येक समय के साथ उस सारी कठिनाई के आरों अवरों से आपने अपनी जो पहचान बनाई है यहाँ। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे बीच में से मुट्ठी भर रेत से
जो सुख की कामना होना चाहिए। रेत में भी जंगल में मंगल करने का काम हमारे सारे अनिवासी भारतीयों ने किया है, जो घर छोड़ के यहाँ आए और अनजान जगह पर अपनी साख बनाना, ये पहचान बनाना, और अपनी पहचान से वो भारत के लिए भी एक तरह से केवल वो एम्बेसडर नहीं है, आप भी राजदूत है भारत के, जो जहां भारतीय रहा है वहां से वो अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में भारत जब एक वैश्विक ताकत की तरफ भी बढ़ रहा है, आर्थिक महाशक्ति की तरफ भी बढ़ रहा है, और भारत का बढ़ना किसी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकता है। भारत का बढ़ना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विदेशों में आपका सक्षम होना जरूरी है, आपका सबका भी उसी प्रकार से, क्योंकि यही तो भावना हमको जियो और जीने दो की तरफ ले जाती है, जिसके भरोसे से हम जहां हैं अपने अपने तरह से भारत के लिए, भारत के प्रतिनिधि के नाते से सब प्रकार के विकास के मामले में अग्रगण्य है। आपकी भूमिका सबसे आगे, और मैं इसी नाते से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे सभी क्षेत्रों में, आप यहां से बैठ करके जहां जब आए थे तब भारत में हो सकता चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, विकास के रास्ते में हमको वो सारी मुकाम की जरूरत थी जो विदेश से कहीं मददगार हमको थी। लेकिन आज बदलते दौर में भारत सहित सभी राज्यों के अंदर माननीय मोदी जी ने वो सारी अनुकूलता बनाई। कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो गए जो मेरे बारे में बता रहे थे। मैं अभी हाल यहाँ कल से तो स्पेन पे हूँ, लेकिन ये बात सही कि मुझे फल की दुकान वो तो नहीं मिली जहाँ मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, लेकिन वहां फल ठेले सब्जी वाले क्या मिल रही है। ये बदलते दौर का भारत है, ये जो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कितनी तेज गति से। अभी एक ही बात बताइए, केवल हमने अपने छोटे से छोटे आदमी को डीबीटी नहीं कर रहा है। यहाँ मैं अगर निवेशकों के बीच में भी बात कर रहा हूं तब ये बात बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश ने अपनी एमएसएमई की, हेवी इंडस्ट्री की पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रियां लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे, और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से, जैसे गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा। ऐसे लगभग 1.5 साल हुआ हमारी सरकार में, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5,200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया, सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोगों को। बीच में कोई नहीं है। किसी ने कहा बिजली की सब्सिडी का 300 करोड़, तो उसको 300 करोड़ दिया। किसी ने कहा आपने कमिटमेंट किया था इस टैक्स की छूट का, तो उसका टैक्स छूट देने का प्रयास किया। जो अभी आपने कहा कि जमीन जो लगभग किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड बैंक इकट्ठा किया, और लैंड बैंक के आधार पर हम अपनी इंडस्ट्रियों के लिए न केवल उनके विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो जो जरूरत है उसकी तुरंत पूर्ति कर रहे हैं। पिछली बार तो मैं विदेश में कहाँ गए थे राघवेंद्र सिंह जी, किसी ने जमीन मांगी थी अपने, हम तो विदेश में ही थे, हमने ऑनलाइन सारी पेपर प्रक्रिया करके जाने के पहले उनको कागज का लंदन में उनको अधिकार पत्र दे दिया कि अब हमारी आपको जो फैक्ट्री लगाना वो यही है, जमीन का अधिकार पत्र दे रहे हैं आपको, हमको दोनों को भारत जाने की जरूरत भी नहीं, मध्य प्रदेश भी जाए बगैर यही दे दिया। जैसे अभी हाल हमारे उच्चायुक्त जी ने बताया है, क्या हमने यहाँ एमओयू कर लिया, क्योंकि जब अपने ही तो कहते कि तुरंत दान महाकल्याण, करनी है तो तुरंत ही करो, काहे की देर करना है। अच्छा, सुबह से शीघ्रम, अपने लिए तुरंत करो जो करना, उससे अच्छी क्या बात। तो ये भाव से तो बात बनती है। हमारे लिए परमात्मा वो अवसर लाता है, जिस अवसर को हम आप जीवन में ऐसे कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते, समय बार बार नहीं आता, लेकिन आया समय को भुना ले, यही तो भारतीय है, यही तो आनंद है। हाथों हाथ हमने उस चीज को उस रूप में लेकर के खड़ा कर दिया। इसलिए एक नहीं, ऐसे कई सेक्टर में आज आप कभी कल्पना नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक एक सेक्टर में हमने जो काम किया है, उदाहरण के लिए मेडिकल के सेक्टर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला अगर राज्य अगर पूरे देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश है, जिसके 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बने मध्य प्रदेश में 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। और हमारे पास जब मैं बैठा
तब हमारे 30 मेडिकल कॉलेज हमारी पार्टी के आधार पे बने थे। ये मध्य प्रदेश से 30 मेडिकल कॉलेज, और ये भी थोड़ा कम है जब तक 13 प्राइवेट और 17 गवर्नमेंट के मिला करके। लेकिन आज की स्थिति में 1-1.25 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने अभी हाल खोल दिए। ये आज 37 मेडिकल कॉलेज होंगे और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। और प्रयोग भी कैसे कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आप में से किसी को भी खोलना है तो हम बना बनाया हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय के माध्यम से है, जिसके टेंडर हमने कराए, तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाई, सारी सिस्टम हमारा मेडिकल कॉलेज चलता रहेगा। और आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना, तो मेडिकल कॉलेज खोलने की सबसे बड़ी और कठिन शर्त तो ये होती है कि हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हॉस्पिटल हमारी तरफ से रहेगा और उसके साथ बगल में कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन लगती। तो 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में हम देने को तैयार है और हॉस्पिटल फ्री में चलाने के लिए देने को तैयार। केवल 1 रुपए में आप अपनी जमीन लेकर के आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, 2 साल तक उस हॉस्पिटल का उपयोग कर लीजिए। आप अपने बलबूते पर 2 साल में जो फीस लगने वाली है बच्चों के लिए, कभी आप कल्पना करना कि मध्य प्रदेश और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बदल गया है। बच्चे भी पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो मेधावी बच्चे हैं, जो 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए और नीट में वो नंबर तो लाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस तो 5-7 लाख रहती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख जरा ज्यादा होती है। ऐसे में वो बच्चा गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे अपने राज्य के अंदर डॉक्टर तो बनेगा, तो हमने ऐसे सारे बच्चों की पूरी फीस सरकार से भरने का निर्णय लिया कि हम भर देंगे फीस, लेकिन डॉक्टर बनाने वाले। इसके एक पंथ 2 काज हो रहे हैं। वो टैलेंट वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनकर के तैयार हो रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसकी MBBS की डिग्री हो रही है, वो एक तरह से मानवता की सेवा करेगा। और फिर हमने उसकी फीस के बारे में भी कह दिया कि ये भी केवल एक तरह से एजुकेशन लोन टाइप है। उसके मन पर दबाव नहीं होना चाहिए कि हमने फ्री में पढ़ाया। जब वो वापस डॉक्टर बनने के बाद नौकरी करने की सोचेगा तो सरकार उसको 5 साल लगातार काम करने का मौका देगी कि बेटा अब तू पैसा चुका देना, कोई बात नहीं, अगले तेरे भाई को फिर मौका मिलेगा। ये लगातार क्रम चलता रहेगा ताकि हमारे बीच में ये जो अच्छाई की बात है। और इतना ही निकल, जैसे हम इंडिटेक्स की उस फैक्ट्री में गए थे, उनके अच्छे नियम उनने बताए कि हमारे लिए आजकल ये जो खासकर उत्पाद, मुझे लगता है टेक्सटाइल की बड़ी, वो अपने आप में बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी ने कई सारी बातें सोच के चली। उन्होंने कहा भाई अब ग्रीन एनर्जी भी गया जमाना के, कोयले से खोद करके बिजली बनाना, उससे पर्यावरण खराब होता है, खदानों में मजदूर डूब जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें बढ़ती है। तो ग्रीन एनर्जी की बात है। उन्होंने कहा आप, और कब तक, उन्होंने कहा इससे हमने सर कंपनी ने तय किया कि 40 तक वो सब चीजों से छूट जाएंगे। हमने कहा 40 किसने देखा। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 32 लाख किसान हमारे यहाँ है, 30 लाख रेगुलर किसान है, 2 लाख हमारे अस्थायी टेम्परेरी कनेक्शन वाले किसान है। हम 3 साल के अंदर सभी किसानों को बिजली के सोलर पंप देकर के बिजली के झंझट से मुक्त करा रहा। और सोलर से भगवान सूर्यनारायण का इतना प्रकाश है अपने राज्य के ऊपर कि वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे और अपने आप में ग्रीन एनर्जी से अपने खुद के सोलर पंप चला ले, घर की बिजली भी चला ले। तो एक तरह से ये ऐसे कई विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पंप स्टोरेज, और इसके माध्यम से पूरे देश में आपको जानकारी इतना ही देना चाहूंगे, आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती पूरे देश में कहीं बन रही है। तो मध्य प्रदेश में बन रही, बल्कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली भी अगर जा रही है तो मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, उसकी ट्रेन चलाने में भी करंट मध्य प्रदेश से लग रहा है। और ऐसे कई प्रयोग, कई सारी विकास के मामले हैं कि यहाँ बैठे बैठे आप अपना काम भी करते रहे और आपकी भी इच्छा होती कि हाँ हम अपने इस सोलर पार्क में कहीं को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वही छूट है। इतने प्रकार से उसमें 2 मेगावाट से लगा के 100 मेगावाट, तो 100 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक सब प्रकार की व्यवस्था में आपके बीच में स्वस्थ कंपटीशन कराते हैं। सीधा MOU कर रहे, और MOU की इतनी अपने आप में गंभीरता भी है बिजली के लिए कि जैसे हमने आज से 15 साल पहले
जब एमओयू किया था किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के 14 रुपए यूनिट बिजली लेंगे, तो हम उसको 14 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। भले आज हमको 4 रुपए में बिजली मिल रही तो 4 रुपए में भी हम देने को तैयार, जिससे कमिटमेंट है सरकार के माध्यम से। तो जो ऐसे निवेशक जो अपने यहाँ काम करते करते मध्य प्रदेश में भी निवेश करना चाहते, उनके लिए भी वो सारी अनुकूलता हमारे तरफ से दे के चल रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारे अपने राज्य के अंदर एडिकेटेड एरिया सिंचाई का रकबा 1956 में केवल 7 लाख हेक्टेयर था। और बताऊंगा तो अटपटा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी जगह ऐसी बात बोलूंगा तो ये अपन कांग्रेस बीजेपी की बात तो नहीं करते, क्योंकि बाहर तो हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन ये बोलने में आश्चर्य तो लगेगा सही, लेकिन ध्यान जाएगा कि कहाँ हमारा 1956 में, आप तो आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देखोगे तो 1956 में गेहूं 94 रुपए कुंटल था, और वो गेहूं आज हमारे 2002-03 तक मध्य प्रदेश में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 550 से 600 रुपए कुंटल में बिक रहा था। यानी किसानों की प्रोग्रेस 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी उनकी। और उसके उल्टा आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की स्थिति में 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं हम अपने किसानों के लिए। ये 20 साल में 2000 रुपए कुंटल का हमने बढ़ावा दिया। और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने में पंजाब के बराबरी में अगर कोई काम कर रहा है कोई राज्य तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इतनी तेजी से हमने न केवल फसल के सेक्टर, सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़े। और आप कौन सा क्षेत्र छूटेगा जिसमें मैं बात करूंगा तो डिफेंस सेक्टर से लगा करके हमारे बीच में आज अपने स्पेन के अंदर बहुत सारे प्रकार से जो हमने संभावना वाले क्षेत्र निकाले। जैसे आपने कहा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं, हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। हर एक सेक्टर में बराबरी से उत्पाद को बढ़ावा देते हुए सरकार बहुत जबरदस्त रूप से तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री के हमारे अलग अलग प्रकार के मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, वेयर हाउस जैसी सुविधाएं तैयार है। आईटी और डिजिटल सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से इंदौर, भोपाल जैसे सेक्टर में, आप अगर दिन में देखेंगे तो आईटी के लिए हमने अपने कभी कल्पना नहीं करेंगे। इंदौर हमारा सबसे महंगा शहर है और महंगे शहर में भी महंगे में सबसे ज्यादा तो MR10 की कीमत है, लेकिन MR10 के ऊपर भी आईटी के सेक्टर को प्रमोट करते हुए 1/10 कीमत पे हम जमीन देने को तैयार है। तो ये जो अपना डेटा सेंटर या आईटी पार्क केवल इंदौर में बन रहे थे, अब केवल इंदौर में नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि रीवा ऐसे स्थान पर भी आईटी पार्क हमारा बन रहा है। तो हमारे युवाओं को भविष्य की दृष्टि से रोजगार भी मिले, उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपनी खुद की साख भी बनाए और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाए। तो सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे सपोर्ट के उनकी ताकत की आवश्यकता है। इसलिए कौशल विकास के मामले, अभी जब हम बैठे थे तब हमारी यूनिवर्सिटियां 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 12 यूनिवर्सिटी थी। आज की स्थिति में 17 यूनिवर्सिटी सरकारी और 52 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की, जो बदलते दौर में सभी प्रकार के कोर्स, केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके एक एक करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है। और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड का ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसको इसकी जान बचाना है, या जबलपुर दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। मानव मूल्यों के आधार पर हमारी जो केवल बोलने की बात नहीं, कोई चौराहे पे घायल है
और घायल है, किसी करंट से एक्सीडेंट हो गया और घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना, 1 घंटे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती। ऐसे में ये मानवता के आधार पर योजनाओं को लागू करने का सिलसिला चालू की, तो गंभीर घायल को हॉस्पिटल अगर कोई राहगीर योजना के माध्यम से पहुंचा देगा तो पहुंचाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, बल्कि 25,000 रुपया उसको इनाम देगी मध्य प्रदेश सरकार के, आपने ठीक काम किया, ये व्यक्ति को समय पे पहुंचा दिया। तो जिस आदमी को पहुंचाओगे, किसी का बाप भाई कोई न कोई रिश्ता तो होगा, उसके परिवार में एक तरह से मदद मिलेगी। ऐसी कई सारी बातों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। टूरिज्म के सेक्टर की बात आ रही है, अब बताओ, आप अंदाज लगा लो, 100 करोड़ की होटल आप अगर बनाते हो तो 100 करोड़ की होटल में, होटल आपकी व्यापार व्यवसाय आप करोगे, भले ही आप यहां से भी काम करोगे, तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार की तरफ से देने को तैयार है कि 70 करोड़ की होटल 100 करोड़ के खाते में आपके आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कई सारी योजनाओं को लेकर के बहुत सारे प्रकार से प्रमोशन कर रही है। ऐसे कई सारे सेक्टर जिसमें बता सकता हूं, लेकिन ये शाम का समय तो केवल आप और हमको मिलने का था, आनंद के साथ बात करने का था। व्यापार व्यवसाय की तो बहुत सारी पॉलिसियां हमारे यहाँ कभी भी आप संपर्क करके लेंगे, लेकिन सच में आप सबको मिला तो सारी थकान दूर हो गई, आनंद आ गया आपसे बात करने का। तो आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।